قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم علیہ الا للمعرفہ. ہر ایک کو آدمی سلام نہیں کرے گا، ہر ایک کو آدمی سلام نہیں کرے گا، آدمی اپنے لیول کے لوگوں کو ہی سلام کرے گا. سبحان اللہ. ہاں کچھ لوگ ہیں قرآن اور حدیث پر اللہ کے نیک بندے عمل کرنے والے کر لیتے ہیں، مگر یہ میجورٹی، اکثریت نہیں ہے. آج اکثریت نہیں ہے. مالدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اس میں سے کچھ دیندار ہیں الحمدللہ، آٹے میں نمک کے برابر دیندار ہیں. ورنہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے، سلام بھی خاص ہو جائے گا. کیا چیز؟ سلام بھی خاص ہو جائے گا. ہر ایک کو آدمی سلام نہیں کرے گا. شادی میں 1000 آدمی موجود ہیں، لیکن آدمی گنے چنے 10 آدمیوں کو سلام کرتا ہے جو اس کی پہچان کے ہیں، اس کے لیول کے ہیں. پہچان بھی نہیں، کیا چیز؟ اس کے لیول کے ہیں. یہ نبی نے پہلے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سلام تک خاص ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی علامتیں، اس میں سے ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی بیان فرمائی، لونڈی آقا کو جنم دے گی. آپ میں کئی بار آپ نے یہ حدیث سنی ہے. سبحان اللہ. لونڈی آقا کو جنم دے گی. حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب آئے گی؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ جبرائیل پوچھ رہے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورے جمعہ میں ہے نہیں، یہ عربی کا ایک لفظ، یہاں سے لے کے اٹھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. اگر یاد رکھو دونوں آدمی کسی کو نہیں جانتے تو یہ بول سکتے ہیں آپ، دونوں بھی نہیں جانتے، پوچھنے والا بھی نہیں جانتا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اگر کوئی چیز نہیں جانتا ہے. عربی زبان کا یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل. اردو میں معنی اس کا ہوتا ہے نبی جبرائیل کو جواب دے رہے ہیں، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کوئی بھی چیز زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ اتنا ٹکڑا بھی ذہن میں رکھ لو، مل مسئول عنہا بعلم من السائل. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے. ہاں کچھ علامتیں ہیں، اگر یہ علامتیں آ جائیں، نبی جبرائیل سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. اس میں سے کئی علامتیں آج میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. لوگ جن کے پیروں میں چپل نہیں، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سر پہ کپڑا نہیں. ایسے لوگ جو معاشرے کے اندر نیچے سمجھے جاتے ہیں، یہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑی بڑے ٹاور بنائیں گے. بلڈنگ کا لفظ چھوٹا ہو جائے گا نہیں، بڑے بڑے ٹاور بنائیں گے اور ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. سبحان اللہ، یہ میرا ٹاور ہے، یہ میرا لینڈ مارک ہے، تمہارا ٹاور ہے. یہ حالت اگر تم دیکھ لو تو سمجھو قیامت قریب ہے. اللہ اکبر. کس میں فخر ہوگا؟ جی کون ہے؟ پرسوں ایک ہفتے کے اندر ایک صاحب ملے، بولے بنگلور کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے کنسٹرکشن کی، کروڑوں ٹرن اوور ہے، مگر اس کا جو اونر ہے 6ویں کلاس پاس ہے. کتنا؟ جی حج کے لیے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا اس کا جو اونر ہے 6 پاس ہے. اور ایک نام انہوں نے لیا، وہ آدمی جس کے پاس کبھی پہننے کے لیے کپڑے نہیں، چپل نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، آج جو بنگلور کے بہت بڑے کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے. میرے رسول نے جو کہا ہم ایمان لے کر آتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. نبی نے جو کہا وہ سچ ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا. اور ایک اہم چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مجھے بچائے، اللہ آپ کو بچائے. ذہن میں رکھو اسے. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بنانے میں فخر نہیں کریں گے. کہاں فخر ہوگا؟ کہاں فخر ہوگا؟ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ فخر کریں گے. کس میں؟ تعمیر مساجد میں، مساجد کے بنانے میں. سبحان اللہ. آج وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. کیا جھومر ہے اس مسجد کا. مسجد تو چھوڑو، لوگ جھومر کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. کیا مسجد ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے کہتا ہوں مسجد بنانا ہمارا کام ہے. جتنی سادی بنا سکتے ہیں اتنی سادی بنائیے، جتنا کم خرچ کر سکتے ہیں اتنا کم خرچ کیجیے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موقع دیا، 11 کلومیٹر کا جو احد کا پہاڑ ہے، لمبائی چوڑائی سب ملا کر علماء کہتے ہیں 11 کلومیٹر ہے، کہا یہ اسے سونے کا بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے مسجد نبوی کو سونے کے اینٹوں سے بنا سکتے تھے،
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खजूर के पत्ते ऊपर और नीचे कंकरियां, धूप पड़ती है तो कंकरी गर्म हो जाते हैं, बारिश पड़ता है तो नीचे कीचड़ नजर आता है। ताखिरात की अलामत यह बयान की गई, नबी के जमाने में ताखिरात हुई, अलामत यह बयान की गई, फजर की नमाज अल्लाह के रसूल पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदा कर रहे हैं तो यहां पर कीचड़ लगा हुआ है। मस्जिद में सजदा कर रहे हैं, वो पानी गिरकर मिट्टी के अंदर पानी मिलकर अल्लाह के नबी के पेशानी पर मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है। यह नबी की मस्जिद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर आज भी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाओ, अल्लाह मौका दे, अब जाओ, वहां एक दरवाजा है, उसका नाम है बाब जिब्राइल। क्या नाम? उस मस्जिद में जिब्राइल आते थे, उस मस्जिद में जिब्राइल आते थे और आने का एक दरवाजा था। आज भी वहां पर लिखा हुआ है बाबू जिब्राइल, ये जिब्राइल का दरवाजा है। उस मस्जिद के अंदर कौन नमाज पढ़ते थे? अल्लाहू अकबर। मस्जिदें दीवारों से नहीं होती, मस्जिदें झूमरों से नहीं बनती, मस्जिदें मुसल्लियों से बनती हैं, तौहीद से बनती हैं, अल्लाह की इबादत से बनती हैं, अल्लाह के खौफ और खशियत से बनती हैं। यही अल्लाह के नबी ने कहा है सल्लल्लाहु, अल्लाह के रसूल बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी मस्जिद में अंदर आकर, मस्जिद के अंदर आकर पेशाब कर रहा है। कहां पर? कहां पर? मस्जिद के अंदर। यह हाल समझ लीजिए, मस्जिद के अंदर आके पेशाब कर रहा है। आपने कितनी बार वो हदीस सुनी होगी, साहबा जूते चप्पल जो हाथ में आया निकाल लिए जी, और उसे मारने के लिए दौड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ो उसको पूरा पेशाब करने दो। क्या कहा? मस्जिद में कर रहा है, वो अंदर कर रहा है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसे पूरा करने दो। अहरिकू अला बोलिही अलमा, ये नबी का लफ्ज है। पेशाब करके जाने के बाद एक बाल्टी में पानी लेकर आओ, बोल, और उसके ऊपर डाल दो। पानी डालने से वो जगह मिट्टी की जगह थी, पानी डालने से वो जगह साफ हो जाएगी। उसके बाद उसे मेरे पास लेकर आओ। वो बद्दू था, वो आदमी शहर का रहने वाला नहीं, खरिये का रहने वाला था। अल्लाह के रसूल ने उसे करीब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा याद रखो मेरे भाई, अल्लाह की जो मस्जिदें हैं वो इसलिए नहीं कि वहां पेशाब किया जाए। बहुत सारे उलमा कहते हैं मस्जिदों में टॉयलेट भी नहीं रखना चाहिए। इस हदीस को सामने रखकर क्या बोलते हैं, वो भी घर से करके आए हैं लोग, यहां पर वजू खाना, वजू भी घर से करके आए, यही मसनून है। टॉयलेट भी घर से करके आए, वजू भी घर से करके आए। बस शुरू हो गया है हमारे पास एक सिलसिला, और वो सिलसिला चला जा रहा है। हमारे इस साउथ इंडिया के एक अच्छे आलिम शेख हदीसुर रहमान साहब मदनी हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनको और उम्र अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, शेख बाकायदा कहते हैं मसाजिद के अंदर जहां तक हो सके, इसलिए कि नबी ने कहा यह पेशाब की जगह नहीं है। क्या लफ्ज है, सुभान अल्लाह। कितने लोग सिर्फ पेशाब करके फौरन भागते हैं, सिर्फ पेशाब करके, वो भी ऐसा आते हैं कोई देख ना ले, पेशाब करे और भाग गए। यह पेशाब की जगह नहीं है, मस्जिद अल्लाह के जिक्र की जगह है। नबी ने यह कहा कुरान की तिलावत की जगह है, यह नमाज की जगह है, तुम इसको इसके लिए रखो। बड़े अच्छे अंदाज में समझाया, सुभान अल्लाह। उसको सुनने के बाद उस बद्दू ने कहा था अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन उस्ताद बनाया है, आपसे बेहतर टीचर मैंने दुनिया में नहीं देखा। सुभान अल्लाह। बहरहाल जो अलामतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, तकरीबन अलामतें आज हम देख रहे हैं। अगर कोई चीज हमारे खिलाफ हो रही है, परेशान मत होइए। इस आयत का दूसरा टुकड़ा, इस पे अल्लाह के लिए गौर कीजिए। इसी पे हम अपना जुमा को इंशाअल्लाह फोकस करते हैं और जुमा को इसी पर हम खत्म करते हैं। ये देखने के बावजूद भी नबी करीम कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, इतना होने के बावजूद भी बजाय इसके कि इंसान अल्लाह के करीब होता, हराम को छोड़ता, इबादतों के करीब होता, इंसान गफलत में पड़कर रमजान में माशाअल्लाह जुमा रमजान के अंदर नमाज के बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतने नमाजी हैं और पक्के नमाजी पीछे हो जाते हैं, कच्चे नमाजी सामने आ जाते हैं। रमजान की यह हालत है, पहली सफ में नमाज पढ़ने वाले को अक्सर मौका नहीं मिलता। यहां का मुझे इल्म नहीं है, जहां मैं जुमा पढ़ाता हूं ज्यादातर और जहां मैं फजर पढ़ाता हूं ज्यादातर, बेचारे जो हमेशा पहली दूसरी सफों में होते हैं जगह ही नहीं मिलती, ऊपर चले जाते हैं, सारा फ्लोर भरा हुआ है। अब तो मेरे भाई कम से कम देखो, दुश्मनों के तसल्लुत को देखो, मस्जिदों की हदीस को देखो, और एक लफ्ज ज़हन से उतर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा मगर मैंने उसकी शरह तुम्हारे सामने नहीं की,
उसी जिब्राइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू में एक लफ्ज है, आका को लौंडी जन्म देगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह जब तुम देखो समझ लो कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। उलमा ने इसकी शरह इस हदीस के ऐसे बयान फरमाई है कि बच्चे जो हैं आने वाले क़यामत के करीब करीब बच्चे आका की तरह हो जाएंगे और मां बाप लौंडी की तरह हो जाएंगे। जी समझिए, मेरी बात समझे आप। बच्चे आका की तरह रहेंगे, मां बाप लौंडी की तरह रहेंगे। कौन सी बात बच्चे को अच्छी लगेगी? कौन सी बात से बच्चा बिगड़ जाएगा? क्या पकाएंगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा, क्या नहीं पकाएंगे तो बच्चा खराब हो जाएगा? सोच सोच कर जैसे एक बड़े बादशाह के सामने बात करते हैं, मां बाप बच्चों से बात करेंगे। ये मैंने देखा है। तुम शायद कौन सी दुनिया में जीते हो नहीं मालूम, मैंने तो देखा है। अपने दवाई को बोलने के लिए भी 10 बार सोचते हैं मां बाप, इसका मूड अच्छा है क्या, यह गुस्से में तो नहीं है, कैसे मूड में यह आया है, यह सोचकर मां बाप बच्चों के सामने अपनी दवाई की भी बात रखते हैं। मैंने देखा है, कई मुसलमानों के अहले हदीसों के घरों में मैंने देखा है। डर डर के मां बाप पूछते हैं। एक वालिद ने मुझसे फजर की नमाज के बाद, जब मैं रहमानी में इमाम था, मुझे कहा कि मेरे छोटे बेटे से बोलो कि मुझे एक इंजेक्शन की जरूरत है। जी इंतकाल हो गया, मैंने ही जनाजे की नमाज पढ़ाई उनकी, मैं ही गवाह हूं उसका। मेरे छोटे बेटे से कहो मुझे एक इंजेक्शन की जरूरत है, 30 पर 4000 उसकी कीमत है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं मगर कोई भी इसे दिलाने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरे छोटे बच्चे से कहो वो दिला सकता है, मैं कहने से पहले वो दुनिया से चले गए। जी मैं खुद, अल्लाह गवाह है, मैं खुद जनाजे की नमाज उनकी पढ़ाया हूं। ये मां बाप की हालत आ जाएगी। आज है ये हालत मेरे भाई। इन अलामतों को देखने के बाद मुझे और आपको करना क्या है? गफलत छोड़ना है। क्या करना है? गफलत छोड़ना है। अल्लाह ने जिस चीज के लिए आपको और मुझे पैदा किया है उस चीज के ऊपर तवज्जो दो।